Hello everybody, I hope all of you are fine and doing well. So let us talk about new concept, cube and cube proof. These are the topics that we are going to discuss in this session. We will also work on some real problems with respect to this concept. So before going to the digital board, let me know that my voice is audible and the screen is clearly visible, so that we start without any impediments. So yes, Shamila server is watching, that's nice. You can also engage your fellows by inviting them to this live session. Along with it, you can also share this live session in saved too, so that we get more and more people. Thank you, and let's start without wasting our precious time. So here we go, and we have cube, and cube root. First of all, let us discuss generally its application in real life or day to day. That what exactly we use this concept in daily life problem, like we say number first, to solve cubic equation, all are algebraic third degree equation. Cubic equation, which is also known as algebraic equation of third degree, जिसको हम कहते हैं third degree, and that is let me write it. It can be with respect to variable like ax to the third plus bx to the squared plus cx, let me split it, cx, these are the variable, plus d equals 0. ठीक हो गया. ये क्यूबिक या अल्जेब्रिक थर्ड डिग्री इक्वेशन है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं बाय नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ cube and cube root. Okay, similarly we also solve this for the determination of, write it in the comment box, determination of dimensions of a cube. एक क्यूब की मुख्तलिफ डायमेंशन हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मालूम कर सकते हैं. F the volume is given. अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो उस क्यूब की मुख्तलिफ साइड्स, एंगल्स वगैरह, जिसको हम डायमेंशंस कहते हैं, मालूम कर सकते हैं. Likewise, if they ask about volume, so they must give dimension with respect to the question. ठीक है, ये उल्टे मतलब भी हो सकते हैं. मतलब आपसे वॉल्यूम मांगता है तो आपको डायमेंशन भी दी जा सकते हैं. ठीक है, तो इसी के थ्रू हम ये
अप्लाई, ये मतलब ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सिलसिले में जो है ना, लेट मी राइट इट, मेक यू क्लियरली फर्स्ट दैट for the determination of various dimension of a cube or volume, so we first know some few formulas, okay. So I'm writing those formulas, like, you know, for volume is always equal to, you know, equal to you know, length, width and height, ठीक हो गया। ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। वॉल्यूम तो हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है। एंड फॉर दैट रीजन वी कैन जस्टिफाई ourselves that because these are sides, okay, as you know, these are sides, length है, width है और side है, so we write that you know, v equals volume, right, equals side times side times side, which is again equal to v equals s cube, ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ये वॉल्यूम हम इस तरह, मतलब वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ, द विड्थ एंड द हाइट ऑफ द कंसर्न क्यूब, is length, width and height are three sides of a object. So we write v equals volume equals side times three sides हो गई, and again equal to v s cube, हमने cube कर दिया, right? Okay. Similarly, another that is area. क्या है एरिया, या जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया भी कहते हैं। सरफेस एरिया और एरिया इज सिमिलर थिंग, ओके। अच्छा, एक इसके एप्लीकेशन और भी है, जो अपार्टमेंट या जो एरिया हमें दिया गया है उसके डायमेंशन भी हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकते हैं इसमें, बट सो फार वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया हियर। सो सरफेस एरिया, for it to solve it, to get the formula, exact formula, we have like you know, S is for surface area, or simple area, equals 2 times LH with respect to you know, L किसके लिए था, मैं तो भूल गया। ये वाला विड्थ और ये हाइट और ये क्या था, जल्दी जल्दी देखे, एल किसके लिए था, मैं तो बिल्कुल मेरे दिमाग से टूट गया। ये क्या चीज था, यस हरी अप, एल किसके लिए था, एल एच और डब्ल्यू, विथ हाइट, और एल बिल्कुल याद नहीं आ रहा, एल मीन, यस लेंथ, यस एग्जैक्टली। कभी कभी चीजें इस तरह घूम जाती है ना, पता ही नहीं होता। लेंथ, यस, सो दैट इज लेंथ, हाइट प्लस 2 multiplied with the length, and then again w plus w for width, and plus 2 times with width and height, ठीक हो गया। या मुश्किल है, वही फार्मूला बना रही है। सो अगेन two sides and two sides, so s equals 2 sides to 2 times side plus साइड हो गया, और ये भी साइड प्लस 2 साइड एंड साइड, ठीक है। अब इसको मतलब हम सिंप्लीफाई करने जा रही है, ठीक है, कि इससे हम एक कोई एग्जैक्ट चीज निकाली। सो 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, ठीक हो गया। सो अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो यू गेट एस सरफेस एरिया वी हैव 6s स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया सरफेस एरिया के लिए, जो हम आगे जाके अभी apply करेंगे what exactly they are. So we have
क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक हो गया। अच्छा, so let's understand this with example like we have 3 and 27. So 3 is the cube of what? 27. Just exactly we have discussed day before tomorrow the square root concept, and 27 is the cube root of 3. Cube root of 3 हो गया। मतलब 3 जो है ना, ये 27 क्या है? क्यूब है। किस तरह है? आप मतलब ये है ना 3 times 3 to the cubed, ठीक है। So the 3s are 9 and then 9 3s are 27। हमने इसको 3 times मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर में हमने जो कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट, उसमें हमने 2 times ईच डिजिट या नंबर को हमने उसी को मल्टीप्लाई करना है बाय इट सेल्फ, और यहाँ हम जो है ना 3 times उसी डिजिट को बाय इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसके बाद करें, ठीक है। सो वी से दैट लेट्स से अगेन विद रिस्पेक्ट टू about example, so third root, and that is we write like exactly that 27, so it can be equal to third, ठीक है। या कुछ कंसेप्ट है इसमें टर्मिनोलॉजी, उसको समझते हैं। इसी को हम कहते हैं, ये वाला जो डिजिट है इसको हम रूट कहते हैं, इसी को हम रेडिकल कहते हैं, ठीक हो गया। और इससे जो अंडर रूट जो भी मतलब वेरिएबल है या कांस्टेंट नंबर है, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं, ठीक हो गया। आई होप सो। या इसको मतलब रेडिकल भी कहते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, आई जस्ट कंफ्यूज, दिस इज इनवर्स ऑफ ईच अदर one another. This is what? This is root. Okay, ये रूट हो गया और ये रेडिकल हो गया। Keep in mind, ये कंफ्यूजेबल चीज है कभी कभी, ठीक है। तो 27 जो अंडर रूट है वो रेडिकेंट है, और जो साइन है, सिंबल है, जो हम स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं, लेकिन वह कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम रूट कहते हैं। बाकी जो आउट ऑफ रूट जो भी डिजिट है या वेरिएबल है, उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। लेट मी चेक दैट वी आर गोइंग गुड। ओके ओके ओके, थैंक यू। यहाँ तक तो ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इस तरह मतलब नेगेटिव्स की जब हम बात करते हैं, नेगेटिव क्यूब्स की, ठीक है। लाइक यू कैन से नेगेटिव 5 क्यूब्ड, सो इट कैन बी इक्वल टू नेगेटिव 5 टाइम्स नेगेटिव 5 times negative 5. So negative times in concept of square root, there is give positive, but here it gives negative 0.25, ठीक है। मतलब इससे वो कर दो 25 और 25 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। Similarly, just like square root concept, we have also perfect cubes. इसमें भी हमारे पास perfect cubes हैं। Like we say that 1 cubed equals 1 times and 1. If we talk about 0 cubes, so it is equal to 0 times and 0, ठीक हो गया। And if you take like for what, कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो हमने यूज किया है, ठीक है, 125 के ले लें। 125 इक्वल टू 5 टाइम्स 5, ये भी एक क्यूब है, परफेक्ट क्यूब जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो हियर दिस इज
equals 5 because of the prime factors, so it is called cube root. Cube root. So cube of an integer because these are integers. ठीक है, 125 in this case, and I hope you are getting. Now coming to another aspect of this concept, and that is how to determine cube root for numbers other than perfect cubed. ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं बनाते तो फिर वो हम किस तरह डिटरमिन या मालूम कर सकते हैं. तो उसी के लिए वी यूज द सिमिलर मेथड एज वी यूज्ड इन स्क्वायर रूट. ठीक है, हमने गस से काम लेना पड़ेगा, और गस वहाँ हम 2 नंबर का करते थे, यहाँ हम तीनों का करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 30. ठीक है, इसके लिए हम करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 क्यूब जो है ना वो 27 के बराबर है, एंड 4 क्यूब जो है ना वो 64 के बराबर है. तो इसी के बीच में हमने जाना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट वी गेट द डिजायर्ड आंसर. हो गया. तो गस के लिए हम यहाँ जो है ना सबसे जो सूट नंबर है वो हम कुछ 3.5 या 3.3 या 3.2 इस तरह के नंबरों के बीच में तलाश करेंगे. ठीक है, और फिर वो आप क्या करें, उसको मल्टीप्लाई टू ईच अदर सो दैट यू गेट बाय रिपीटिंग 3 टाइम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये करें 3.5, ठीक हो गया, 3.5 एंड 3.5. ठीक है, तो इसको आप वही करिए, एक आंसर आएगा. फिर आप मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एंड आई अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, इस तरह आप 3.2 की ले ले टाइम्स 3.2 टाइम्स ये 3 हो गया, 3 एंड 3 हो गया, एक आंसर आएगा. उसको आपने कंसिडर करना है. फिर आप क्या करें, इसके 3.1 के ले लें, कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, और एक आंसर आएगा. जो भी नंबर इसी में से जो भी प्रोडक्ट मतलब 30 के करीब होगा वही आपका स्क्वायर रूट कंसिडर किया जाएगा, क्यूब रूट कंसिडर किया जाएगा. ओके, सो लेट मी नो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, दैट हाउ टू डिटरमिन cube roots for numbers other than perfect cube root. Okay, अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ चलते हैं. So I'm considering some an example like suppose we have a cube. इसको थोड़ा वो करते हैं. एक क्यूब है हमारे पास. ठीक है, a cube is let's say 2.5 inches ले रहे हैं. ठीक है, inches on each side, ये वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, each साइड एक क्यूब है, उसके मतलब हर साइड जो है ना 2.5 इंच है. सो इट कैन बी द अदर वे अराउंड. ठीक है, लेकिन यहाँ हम कंसिडर करते हैं खुद. वी हैव टू फाइंड आउट लेट्स से वॉल्यूम भी मालूम करना है, एंड व्हाट इज सरफेस एरिया भी मालूम करना है. हमने provided the data as above. So let us imagine by drawing the cube. So
So as you know, cube, just like I'm just trying to draw the picture or diagram so that you get exactly. Suppose this is a cube. So a cube, you know, each side, एक तो ये वाला साइड हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। मैं इसको डिपेंड कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और दूसरा तीसरा जो है ना ये वाला हो गया, अंडरस्टैंड। नाउ अब हर साइड जो है ना कितना है, वो 2.5 इंच है, 2.5 इंच है और ये भी 2.5 इंच है। Got it? So according to the above formula, we have extracted these are the formulas, this one and this one. Okay, so we are those formulas we can solve our problem here. हमें तो डेटा दिया गया है, ठीक है। So here we consider say V, which is volume, equals S3 is the formula. So we will just substitute the value, ठीक है। So per volume as we are going to solve it, so a surface area है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हमने या एस लिया, ये एक्स भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो 2.5 टू दी क्यूब, ठीक हो गया। सो अगेन यू हैव 2.5 टाइम 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स इट बिकम यू नो क्या हो जाता है इसका 2.5 इक्वल्स इसका क्या हो जाता है 6.25, yes, and then you multiply this with another, so you get you know yes 15.625 इंचेस, या इंचेस की बात की गई है। कोई भी मतलब इसमें यो नहीं है, यहाँ आपको मतलब वही यूनिट दी गई है, ठीक है। आपने उसी का भी ख्याल रखना है, क्यूब इंचेस। cube inches, right? ये तो वॉल्यूम हमने इसी के इस तरह मालूम कर दिया। अब सरफेस एरिया के लिए या सिंपल एरिया के लिए we write let's say let S equal surface area and surface area is equal to 6S cubed. So again just substitute the value, so 6 and then 2.5 to the cubed, is cubed. So what you get पहले आपने ये करना है, तो इसके लिए मतलब ये तो हमने पहले कर दिया है, ये वाला आंसर है ना 6.25, ठीक है। वो तो ऑलरेडी हमने मालूम कर दिया है, so you can do it easily now, so that it become 6. सॉरी एक चीज में यहाँ भूल गया, यहाँ ये मतलब स्क्वायर है, ठीक है। ये इंच नहीं है, क्यूब नहीं है, ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्वायर है। So when you square this number, so you get 6.25 like this one. So you simplify it, 6 times 6.25, so 36, and then you know 6 times 6 36, and then 25. So it can be like pretty near to 37 point something, okay। कोई मतलब राउंड अबाउट ले ले 5 6 इस तरह आएगा, ठीक है। स्क्वायर इंचेस बिकॉज इट इज इन सरफेस एरिया। यह क्यूब की बात थी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो वी हैव सॉल्व द
problem according to what they asked. So far I don't see any reaction from your side. It's mean that we are facing some problem. It seems nothing like that. I hope that we are going good. So let's hope for the better. अच्छा, ये तो एक हो गया. अब एक और प्रॉब्लम भी मतलब आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. वही क्यूब है, लेट्स से एन अनदर क्यूब मैं ड्राइंग में ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह बन जाए. ओके, सो लेट्स मेक इट. फॉर एग्जांपल ईच साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाले भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. ये वाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है. And if in examination they ask you to find out the surface area, ठीक है. But you must keep in mind with respect to units कि ये क्यूब मीटर्स में है या क्यूबिक सेंटीमीटर में है या इंचेस में है या फीट में है या मीटर में है, ठीक है. ये आपने ज़रूर कंसिडर करनी है, लेकिन यहाँ हम सिंपली वही करेंगे, जस्ट making the thing easy. सरफेस एरिया मांगते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब दे रहे तो हमारे पास ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर है और क्या मांगते हैं, सरफेस एरिया मांगते हैं. हमें जो है ना साइज दी गई है और एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स से सरफेस एरिया इक्वल्स 6a स्क्वायर्ड, और आपने मतलब क्या करने है, वही चीज़ें डालने हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें. सो 5 to the squared again, so it is equal to 625 to 5 times 5 equals 25, and again 6 times 25 equals 400 by 100, and it is, yes, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. ठीक हो गया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस सो फार, ठीक है. एंड आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया. अच्छा, रिपीट फ्रॉम एरिया लास्ट एग्जाम्पल लास्ट. अच्छा चलो, ये वाला जो है ना मैंने वैसे ही बना दिया, कोई मतलब उसमें वो फॉर्मल चीज़ें मैंने नहीं डाली कि क्वेश्चन इस तरह रहते हैं. मतलब एक ये भी पूछा जा सकता है कि आपको मतलब एक वॉल्यूम दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स 3 साइड्स, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हमने सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है, सो वी हैव अ फार्मूला एंड दैट इज इक्वल टू 6s क्यूब. एस पर एस कोई भी चीज हो सकती है, ए भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है. कोई बंदा कोई भी डाल सकता है. लेकिन जो 6 है ना, ये वाला, ये हमने वो एक्सट्रैक्ट किया है थ्रू फॉर्मल प्रोसेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली मीन दैट 6 कम फ्रॉम एग्जैक्टली 6 साइड्स, ठीक है. एक साइड ये हो गया, ये वाला इसके जो अपोजिट जो है ना, जो इसको हम इसी कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड जिसको हम कहते हैं. मतलब जो एग्रीमेंट में हो, हार्मोनियस हो, एक जैसे हो, ठीक है. इसकी अपोजिट नीचे भी एक साइड है और इस तरह ये वाला साइड की अपोजिट भी एक नीचे साइड है. एंड सिमिलरली ये वाला जो है ना इन द फ्रंट ऑफ यू, इसकी अपोजिट भी ये वाला साइड है. तो 6 साइड्स हो गए ना, तो इस हिसाब से ये वाला फार्मूला भी आ गया.
और ये तो वेरिएबल है, ये हमने वहाँ से निकाला, ठीक है। सो नाउ जस्ट यू नीड द डेटा एंड डेटा जस्ट 5 5 एंड 5, ठीक है। आपने वही सब्स्टिट्यूट करना है एस के बजाय, ठीक है। सो दैट बिकम व्हाट व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स बिकॉज इट इज स्क्वायर, so you have to multiply both the number by itself, okay, and that become 25, and then you multiply 6 with 25, so it become 150. Simple multiplication है, ठीक है। So I hope now you are clear. If you are clear, so let me know. अब आपकी बारी है, ठीक है। सो पहला एग्जांपल या प्रॉब्लम जो है ना आपके लिए, जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, लेट मी राइट इट appropriately so that you get, let's say surface area of a cube is 50, ठीक है, 50 square meter, keep in mind square meter. So you need to determine the side, उल्टा हो गया ना, side of the cube, ठीक है। सिंपल सी चीज है, बस फार्मूले अप्लाई कर दो, आपके लिए आसान है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल या क्वेश्चन, लाइक a cube has let's say 12 feet, 12 feet each side, क्यूब की जो हर साइड है वो 12 फीट है। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट द सरफेस एरिया बिसाइड्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। गॉट इट? So if you got it, so let me know. Yes, okay, thank you that you are clear. So these are the problem you have to solve in the comment box at the end of this session. So there is nothing to say about it, and we have covered basic idea about this topic and other as well. Now if you have any question regarding this, so you go ahead. इसके साथ साथ मैं मतलब क्या कहते हैं इसको, इरेगुलरली आपको मतलब चीज़ें भी दूंगा, प्रॉब्लम्स यहाँ, ठीक है। तो आप कॉशियस भी रहिए और कॉन्शियस भी रहिए, ठीक है, कि आपको पता चले। बस आपने आना है, जो प्रीवियस जो भी चीज़ें हमने किए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने किए, उसी के हिसाब से मैं जो स्पोरेडिकली कहते हैं ना, स्पोरेडिकली इरेगुलरली मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, सो दैट यू क्रैक इट इजीली। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई शुड लीव। सर का जो है ना ये कैपिटल एस है, ठीक है, प्लीज भी PLZ नहीं है, बल्कि ये जो करेक्ट हो रहा है वो लिखना चाहिए, ठीक है। यू आर एकेडमिक पीपल, यू मस्ट बी कॉन्शियस, ओके, बिसाइड्स कॉन्शियस, कॉशियस। ओके, सो नाइस ऑफ यू, सी यू।